I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022. And we are happy that we could get this series to the end. And this is our last but not the least lecture. 100th lecture will be the event. And I'm so happy and blessed and honored to welcome our today's speaker, none other than our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. So friends, sir needs no introduction, but still we there are few things that I must share with you all. So Liaquat Namole sir is an eminent and passionate homeopath from Nashik, Maharashtra. Sir has more than 29 years of vast experience of homeopathic practice. He has conducted more than 300 seminars and more than 250 webinars all over. Sir has conducted nationalized seminars on various diseases, specific like diabetes, skin diseases, infertility, as well as pediatrics. Sir is a visionary, as we say. He has a motto to convert 10,000 GPs to homeopathy, and till now he is successful in converting more than 1,000 GPs to homeopathy. If they are not practicing 100% homeopathy, but practicing GP along with homeopathy. And sir is a pioneer of the group that is Ignited Minds by PHF, where more than 2,500 doctors learn on daily basis. Sir has discovered a unique method that is MML, Mind Method by Dr. Liaquat. The focus of MML is to practice solely on mind, and empathy is the mantra. Dr. Liaquat Namole sir is the master of gestures. He is the one who has introduced gestures in homeopathy. Through sir's keen observation and huge experience, he has found out many original gestures, and which is a blessing for all of us and to homeopathy. Sir is an author of the bestseller book that is Humanopathy, and more than 20,000 copies have been sold already. And Sir is working on the second edition of the book. And besides this academic, Sir is a very generous person and a marvelous poet too. So without wasting much time, let us welcome Sir with a huge round of applause. Welcome, sir. Over to you. Thank you, Beta. Thank you very much, Mansi, for such lovely introduction. Every time I hear, I say, oh my God, something, it's like, oh my God. It's like, oh my God feeling. Thank you, Mansi. Uh, Friends, sorry, I had some few very important cases. That's why I had to make you wait for so long. Thank you very much for your waiting, for the patience. Thank you. Mm, I got calls from some few impatient students. Okay, so their rubric is impatience. Others who did not call might go in the rubric patience, but it's not pathological. So you people are waiting. So that's not a pathological patience. So that's a physiological patience. So you cannot sit in that rubric patience anyways. Okay. Anyway, let us start with a case. Okay, this remedy also is one of my not to say favorite. We don't have favorites anymore now, but one of the remedies that has never failed me. Okay, I have huge experience of this remedy, like lots of cases. A lot of cases I've treated with this patient remedy. Very useful remedy that I've found in my practice. Few cases. Let's understand. Then I'll be explaining when I explain you the PowerPoint. I'll explain you like about detail about the remedy possible, whatever like. So case of again two patients actually. Let's say let's talk about one patient first. A man coming with difficulty in breathing, chest pain, and with huge anxiety.
Okay. Now I asked the patient like, कि क्या, what is the problem? He says, Doctor Saab, I certainly have something which we are not able to find out. I've done lots of tests. I've shown many doctors, and I'm sure, sir, this disease, because of this, my health is also deteriorating. I'm getting thin. I'm becoming, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है डॉक्टर साहब, मुझे अच्छा कर दो, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है. ये स्टार्टिंग वाज डॉक्टर साहब अच्छा ही नहीं लगता है. कई दिनों से डॉक्टर साहब मुझे बीमार बीमार ही लग रहा है, अच्छा ही नहीं लगता है. ऐसा दिन याद ही नहीं है कि जब मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है. तकलीफ ये सर डॉक्टर साहब, जब तकलीफ होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है, चक्कर आती है डॉक्टर साहब. और जब चक्कर आते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है, क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब. इस सेंटेंस में कुछ समझ नहीं आता. कुछ समझ में नहीं आता, और मेरे तबीयत खराब होती जा रही है डॉक्टर साहब, बहुत दिक्कतें आ रही है. और देन आई आस्क कि कोई स्ट्रेस है क्या लाइफ में? कोई स्ट्रेस नहीं डॉक्टर साहब, यही है कि मैं कब ठीक होगा. वहाँ बीमार बीमार रहता हूँ डॉक्टर साहब, और बहुत बीमार बीमार रहता हूँ डॉक्टर साहब. And I am not understanding ki what is the reason. Educated person, okay, man was around like 38 years old. Okay, similar case of a lady also I had, same with same complaints. बहुत तकलीफ होती है डॉक्टर साहब. And this lady used to check HIV also. Okay, because ये मेल की केस, लेडी फीमेल की केस में एग्जैक्टली सिमिलर प्रेजेंटेशन, बट द लेडी केम टू मी विद चेक द ट्राइडॉट, आई मीन व्हाट इज इट, HIV का टेस्ट जो उसने किया था, वो 3 बार चेक करके शी हैड कम टू मी. पुअर लेडी, सेकंड वाइफ of a man, husband is staying with her, husband is not staying with the first wife has a son and a daughter. This lady has a daughter from her first marriage, but the husband is staying with her, same complaints. पर डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, मेरे को दवाई मैंने जब ली, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी दवाई खा खा के मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है. और ये इतनी दवाइयां देते डॉक्टर साहब, ये भी वो भी समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब, ये दवाई के बीच में भी कुछ गड़बड़ होती है, क्या होता है? क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि 2 दवाइयां मिक्स हो जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम्स आते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है, हो ना हो, ये जो दवाइयां मैंने ली डॉक्टर साहब, इतनी सारी दवाइयां, शी शोड मी 10-15 मेडिसिन दैट शी वाज टेकिंग, शी हैड टेकन लाइक, तो इनके अंदर भी कुछ हो गया होगा डॉक्टर साहब, ये भी मुझे लगता है. और पता नहीं डॉक्टर साहब, अभी सौतन क्या करती है क्या नहीं, पता नहीं है. क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम में तो मेरे पास आते हैं, दिन में उधर जाते हैं, और ये लेडी बाजार में सब्जियां बेचती है. ठीक है, तो मैं तो अपना काम भी करती हूँ, खुद भी करती हूँ, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, मैं अपने खुद के बलबूते पे भी रहती हूँ. मैं पहले से ही ये बिजनेस करती हूँ, मतलब बिजनेस एज इन, तो उन्होंने हिंदी में बोला, ये धंधा करती हूँ, सब्जियां बेचती हूँ बाजार के अंदर. तो मेरा तो पहले से ये शादी इनसे बाद में हुई, मेरे पहले हस्बैंड एक्सपायर हो गए. तो वो बीमार, वो एक्सपायर हो चुके हैं ट्यूबरकुलोसिस से. तो इसको शक ये था कि कहीं उसको HIV तो नहीं. तो एक डॉक्टर ने उसको बताया था कि शायद वो हो सकता है, आपको तो चेक कर लो, क्योंकि वजन कम हो रहा है आप बोल रहे हो. तो आपको तो पता है जीपीज एंड दे, आई मीन, लेट्स नॉट प्ले द ब्लेम गेम, बट ये तो सारा ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं. हीमोग्लोबिन वाज गुड, दैट लेडी वाज हैविंग हीमोग्लोबिन लाइक समथिंग लाइक 11, सेम विद द मैन, 11 11.5, नॉट एनीमिक सो टू से. बट व्हाट दे सेड कि वजन कम हो रहा है, द लेडी बोलती, देखो डॉक्टर साहब, कैसी मेरी शरीर कैसा होता जा रहा है, झुरिया जैसे लग रहा है, सूख गई हो ऐसा लगता है मुझको डॉक्टर साहब. ये प्रेजेंटेशन दोनों में भी. एक पेशेंट का था कि डॉक्टर साहब मैं पहले शराब पिया करता था, मुस्लिम हूँ, पीना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई. मुझे ऐसा लगता है कि पेट में मेरे कुछ उसके कारण तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा खाना पीना बंद हो गया डॉक्टर साहब, बहुत कम खाता हूँ मैं. जबकि मेरा ऐसा था कि मैं इतना खाना खाता था, एक टाइम को कम से कम 6-7 रोटियां खाए बगैर उठता नहीं था. लेकिन आजकल खाना कम हो गया. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हफ्ते में 2-3 दिन की मैं बहुत खाना खाता हूँ, 2-3 दिन ऐसा होता है कि खाना नहीं जाता है. तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है डॉक्टर साहब. तीनों में एक ही चीज थी, समझ में नहीं आ रहा है क्या है. वजन कम हो रहा है, और कुछ तो बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही. ये प्रेजेंटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन दैट आई गॉट द पेशेंट. नाउ लेट अस डिस्कस. Okay, you can unmute and discuss now. Tell me, what is the possible thing? Hello.
हेलो, आप लोगों की केस समझ में आई? हेलो सर। हेलो, हेलो सर। हाँ, आप एम आई हाँ हाँ। ऑडिबल? आवाज आ यस रही है? यस। यस, वेरी क्लियर सर। थैंक यू। मुझे वो जो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, वो एंजाइटी डार्किन लग रहा है इन लोगों का। और उनको लाइट चाहिए। मतलब वो बोल रही ओके है मुझे जल्दी से ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये प्रॉब्लम जो है मेरी। और ओके, तो वो लाइट लेडी डिजायर भी और बता एंजाइटी रही, डाउन, ये दिस इज व्हाट यू फीलिंग। लाइट डिजाइन। और डिल्यूजन इंजरी भी इंजर्ड लग रहा था, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड दिन में वो फर्स्ट बेबी के पास रहते हैं, बाद में मेरे पास आते हैं, तो मेडिसिन भी बहुत मतलब लिए जाते हैं, तो किस वजह से हो रहा है, तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड वो लेके आई एम गेटिंग स्ट्रैम एंड फॉस्फोरस। ओके, स्टैम एंड फॉस्फोरस इज व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई? एनीबॉडी एल्स? यस, हेलो, हेलो, और कोई? how many doctors are there? I think 30 35 doctors are there. Let us see. Anybody else wants to share something? Now being injured, how you feel? क्योंकि वो आपको लगता है कि सौतन ने कुछ उनको किया है जिसके कारण उनको तकलीफ हो रही है। ओके, फेयर इनफ। और कोई? हेलो, कोई नहीं है? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल गाइज? सर, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल मार्क्ड है सर इसमें। एंजाइटी हेल्थ अबाउट वो भी मार्क्ड है। एंजाइटी हेल्थ एंड एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। हेल्थ हाइपोकॉन्ड्रियकल तो है नहीं, ये तबीयत के बारे में ही सोच रहे हैं ना बार बार। तो हेल्थ या ओन हेल्थ क्या लेना है आपको? कौन हेल्थ ना। ओन हेल्थ, ठीक है। एंड एंजाइटी, और क्या बोला? एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। ओके, हाइपोकॉन्ड्रियकल। ओके। हाँ, तो बड़ा होता है, इसके अंदर आपको काफी रेमेडीज आएगी, समथिंग हाँ, लाइक काफी रेमेडीज आने वाले। एक रेमेडीज में समराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसमें। ये 37 दो रूब्रिक लिए रेमेडीज तो। आएगी। हाँ, 37 रेमेडीज आएगी। हाँ, और कोई? आप जितना डिस्कस करोगे उतना इंजुरी। ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, नहीं तो। हाँ, हम्म। इंजुरी कैसे पकड़ सकते हैं सर इसमें? इंजुरी मेरे को नहीं लगता है। नहीं, आपको जो लगता है बताओ। अब वो उनको लगा तो उन्होंने बताया। हम्म। सोचता हूँ सर, सोचता हूँ, फिर से सोचता हूँ थोड़ा। ओके, क्योंकि तीनों केसेस में सिमिलैरिटीज है, इसलिए मैं बता दिया तीन केसेस। और ये तो श्योर है कि तीनों की रेमेडी एक ही है। ओके, और कोई? या मैं बोलूं? हेलो, देखो, सिंपल सिंपल आई मेड वेरी सिंपल। क्या क्या बोला उन्होंने, पेशेंट ने क्या क्या बोला? हेलो, चक्कर आते हैं, समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता को क्या लगे आप? मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या। कंफ्यूजन ऑफ माइंड। कंफ्यूजन ऑफ कंफ्यूजन माइंड। ऑफ माइंड। बराबर है ना, जब समझ में नहीं आता है, है ना। और एक चीज आपको बताऊंगा मैं, कंफ्यूजन ऑफ माइंड क्या है, उन्होंने क्या बोला, कितना क्लियर कट बोला है। चक्कर आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। वर्टाइगो ड्यूरिंग। वर्टाइगो ड्यूरिंग। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, वर्टिगो ड्यूरिंग। और डॉक्टर साहब ये दवाइयां जो ली, उसने क्या बोली कि सौतन ने कुछ किया। दो दवाइयों के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या है? और वो दवाई उसने ली है, शी हैज टेकन द मेडिसिन एंड शी इज फीलिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड व्हेन टू मेडिसिन्स मेट, राइट? दे केम टुगेदर। सो व्हाट इज दैट? डिल्यूजन। डिल्यूजन Delusion. पॉइजनड This पॉइजनड। is delusion. Poison has been, right?
Delusion, Yes. poisoned, right? He has been poisoned, right? Third thing what the patient said कि डॉक्टर साहब बीमार बीमार ही रहती हूँ, मुझको अच्छा कर दो. अच्छा Delusion को sick जब being पेशेंट and बोलता है carried ना, desire to be carried. देखो जब पेशेंट बोलता है ना कि डॉक्टर साहब अच्छा कर दो, मैं पूछता हूँ क्यों क्यों आप बोल रहे हो अच्छा कर दो? क्योंकि हर पेशेंट तुम्हारे पास अच्छा होने के लिए आता है, लेकिन सब नहीं बोलते हैं अच्छा कर दो. ज्यादातर पेशेंट आपको कंप्लेंट्स बताएंगे, दैट्स इट. अच्छा कर दो बोलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आप, राइट? तो अच्छा कर दो तो एक सवाल आप पूछो क्यों. अगर पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब आप कर दो, आपसे मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब, देन यू कैन थिंक अबाउट लाइट डिजायर और होपफुल और राइट, है ना? और पेशेंट डायरेक्टली अगर बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आप अच्छा कर दो, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, इसका और दूसरा मतलब क्या होता है? बीमार बीमार लग रहा है ना? बोला ना एक पेशेंट ने, तो अच्छा नहीं लग रहा है का मतलब क्या है? डिल्यूजन हेलो, सिक बी. दिस इज Delusion डिल्यूजन sick. बीइंग सिक, राइट? तो अगर हमने तीनों बड़े बड़े रूब्रिक लिए जो कि कंफर्म्ड है, राइट, तो देन यू land with 10 remedies only. Confusion of mind, vertigo during delusion, he has been poisoned, and delusion being sick. Okay, if you take these three rubrics, let me share the screen. I'll do that. So, share screen. काय करोगे यार? शेयर करो ना इधर. हाँ, शेयर. क्या दिख रहा है आप लोगों को? रेपर्टरी चार्ट. दिख रहा है. देखो तो if you take these three remedy rubrics, what comes there? Naxomica, pulsatilla, Lyco, Sabadilla, Sepia, Staphysagra, Stramonium, Nux muscata, Phosphorus, Pygelia. You are with 10 remedies now. Now, who was saying anxiety dark? इस समझ में नहीं आ रहा है क्या? मतलब अभी आपने ले लिया. अब बोलो कि पेशेंट बहुत जगह पर जा रहा है, ठीक है, बहुत जगह पर जाकर आ रहा है, उसको पता चल रहा है कि कुछ नहीं है, तो क्या आप एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल लोगे? हाइपोकॉन्ड्रियाकल का मतलब क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रियाकल का मतलब क्या होता है? What is hypochondriasis? Let us go to Google and ask what is hypochondriasis, right? Can anybody tell what is hypochondriasis? Hypochondriac. Okay. Hypochondriac meaning is a person who is often or always worried about his or her own health. A person affected by hypochondria or hypochondriasis. See what Webster, what is this? Webster dictionary, what is it? Hypochondriac. Often or always worried about health. ठीक है, ऑफन और ऑलवेज वरीड अबाउट हेल्थ. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है हाइपोकॉन्ड्रियकल का? व्हाट इज माय एक्सपीरियंस इज दैट द पर्सन इज नॉट कमिंग विथ one disease per se. Okay, in hypochondriasis, patient do not come with one disease. He will come with vague symptoms. Okay, that is my experience. Vague. यहां पर पेशेंट स्पेसिफिकली आपको बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी सेहत कम हो रही है, ये देखो मैं कैसे झुलस रहा हूं, बराबर, और स्पेसिफिक सिचुएशन दे रहा है कि मैंने कुछ लिया था जिसके कारण मुझे हो रहा है. तो उसमें ज्यादातर क्या होता है ना, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में देयर इज नो हेड नो टेल. यहाँ पर स्पेसिफिक रीजन ये दे रहा है कि कुछ दवाइयों से हो रहा है क्या, सौतन से हो रहा है क्या, हेलो. तो यहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रियासिस थोड़ा सा डाउटफुल होता है. तो whenever in doubt, I do not take the rubric. Okay, now what Dr. Manik has said, hypochondriasis and anxiety about own health. Okay, anxiety is fine, but whether it is about again one's own health, have you confirmed that whether whether he has this this nature about others also? Hello, do you understand? अगर पेशेंट का नेचर है फिक्र करने का,
तो फिर हम ये लेते हैं ओन है, उसको किसका नहीं पढ़ा है, खुद के लेके पढ़ा हुआ है, then I take this rubric, specifically I take this, okay, whenever, क्योंकि यहाँ पर अभी चांसेस तो ये है कि इसको कुछ बीमारी है नहीं, ठीक है, बीमारी है नहीं, डर है, it is a vague thing that she is coming with, right? So that means, that doesn't always mean that it is hypochondriac, it can simply be hysterical, right? एलोपैथी में इसको क्या बोलते हैं, हिस्टीरिया बोलते हैं ना, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, yes sir, yes, so yes. instead of anxiety hypochondriacal, take hysteria. Please remember, if you go to psychiatrist, the diagnosis is HYS there in such patients, right? Now you can take hysteria and your see, search becomes how much now? Repetition is coming to 10 remedies now. And big rubric that we took, 276 remedies का rubric है देखो, hysteria. Not anxiety hypochondriacal, please remember. Hysteria is a big rubric, but still we land up with 10 remedies only. Previously we were with 25 something, right? Now we are with 10 remedies. How to proceed, that's what I'm telling you. Big rubrics, take big rubrics. Confusion of mind, vertigo with था, poison है, sick being है, hysteria है, ये confirmed rubric है. Anxiety dark का कैसा है, अगर आपको hysteria है तो anxiety dark आप लोगे क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि confusion भी एक हमने ले लिया, hysteria भी ले लिया, क्या है समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब. अब इसके लिए भी हम रूब्रिक लेंगे, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. See, now you are with Nux, Pulse, Sepia, Lyco, Nux muscata, Phosphorus, Sabadilla, Staph, Stramonium, Spigelia, right? कितना कम होता जा रहा है ना, search is becoming, you are able to narrow down the search to 10 remedies now. Now to differentiate 10 remedies, it's not very difficult, but otherwise, because we always go with the repertory and sound, like strong, I always believe in having good sound rubrics. Okay, now tell me how to proceed. अब ये लेडी को हस्बैंड गया तो उसको लग रहा है कि HIV तो नहीं, 3 बार कोई चेक करता है क्या? एक, द सेम लेडी इज फीलिंग कि सौतन तो कुछ नहीं कर रही है. अब ये एजुकेटेड बंदा, अब हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल, वजन कम नहीं हुआ है, उसको लग रहा है कम हो रहा है, शरीर झुलस रहा है. अब शरीर झुलसना इन अ 40-year लेडी, जो पहले विडो रह चुकी है, रीमैरेज है, बाजार में काम कर, बाजार के अंदर वो ये बेचती है, सब्जियां बेचती है, तो इज इट नॉर्मल फॉर हर टू हैव द स्किन लाइक सॉर्ट ऑफ shriveled and to look little emaciated, like to say, let's say dehydrated, whether it is common or uncommon? Hello, whether it is natural or unnatural? Natural. So will you be taking that now? No, sir. तो यहाँ पर बीइंग इंजर्ड हम लेंगे क्या, इसके कारण मुझे नुकसान हो रहा है. बीइंग इंजर्ड इज नुकसान होना, ब्रीच इन कंटिन्यूटी, इसमें तीनों के भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ना इनका हेल्थ डिटोरिएट होता जा रहा है, इनको लग रहा है, जिसकी वजह से हमने हिस्टेरिया ऐसा दिया है. तो व्हेन दैट कंडीशन इज स्पेसिफाइड, व्हेन इट बिकम्स क्लासिफाइड, then we cannot take being injured here. Are you getting me? Hello. Yes, sir. So then we cannot take. Sick being is yes, perfect, क्योंकि इसको बीमार लग रहा है, that is for sure, right? Poison भी लग रहा है, sure. Confusion है, sure. और क्या है उसको, एंजाइटी तो है, बराबर है. अब हम एंजाइटी को थोड़ा सा टटोलेंगे कि एंजाइटी किस बात की एंजाइटी, क्यों एंजाइटी है इसको. क्या लगता है उसको, सीने में सांस लगती, सर सीने में ऐसा धक्का जैसा लगता है, सांस में तकलीफ होती है. तो हम लोग देखेंगे कि एंजाइटी रेस्पिरेशन का कोई रूब्रिक आता है क्या. देखो एक रूब्रिक है, एंजाइटी विद इंपीडेड रेस्पिरेशन. इंपीडेड मतलब क्या, अटक के आना, सांस रुक के आना, बराबर है. और एंजाइटी, व्हाट एल्स द पेशेंट हैज, क्या लगता है उसको, सीने पे वजन लगता है, दबाव लगता है. Very commonly people say, right? So we'll go to chest again.
Now, what is their anxiety? Chest. Specifically, the patient said कि दबाव लगता है, तो pressure from on chest, right? Hello, patient is feeling that there is a pressure on the chest. See the remedy which is coming. It is Sabadilla. अभी pressure on the chest भी निकाल दिया मान लो, अगर से ये नहीं भी अपने को समझ में आ रहा है, but with impeded respiration है, मतलब respiration का तकलीफ हो रहा है. अब यहाँ पर आ रहा है 7 रेमेडीज. ठीक है, अब पेशेंट जो सोच रहा है, तीनों भी पेशेंट एजुकेटेड पेशेंट है, कुछ बीमारी नहीं है. लास्ट वाली लेडी HIV सोच रही है, सौतन के बारे में सोच रही है, उधर से कुछ दिक्कत नहीं है, रात में ही तो हस्बैंड आएगा ना आपके पास. हेलो, वो भी तो काम पे जा रहा है, इसको लगता है कि सौतन के पास जा रहा है, जाएगा, फर्स्ट वाइफ है, बच्चों के लिए जा सकता है. But if he's coming to you, he's playing the role of the husband with you, he's supporting her. She also goes to the bazaar and comes in the evening, like she goes to her business. Husband is not going to sit in the house with her, right? ये पहले भी दोनों पेशेंट के अंदर टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो गड़बड़ तो है ना, सोच में कहीं तो गड़बड़ है. हेलो, प्रॉब्लम सोच का है, राइट? हेलो, तीनों के ख्यालात सही नहीं जा रहे, तो इतना प्यारा एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है, थॉट्स एरोनियस. व्हाट इज एरोनियस? Erroneous is what? बोलो. See, erroneous. I have opened the dictionary for you. आपको डिक्शनरी दिख रही है ना? Go to containing or characterize. देखो कितना अच्छा है. erroneous का मतलब कितना अच्छा है. Mistaken, containing or characterized by error. Error, गलत ख्यालात. बराबर है. देखो erroneous. Let us go back and let's understand what is erroneous meaning in Hindi. है ना? Because आप लोग हिंदी को ज्यादा आप लोग प्रेफर करते हैं, तो let's go to Hindi and understand erroneous meaning in Hindi, right? गलत. हम्म. गलत. erroneous meaning, हाँ गलत. इसकी सोच गलत रही, बराबर ना? इंसान गलत सोच रहा है. मराठी में क्या मीनिंग है देख लो, फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड मराठी. चुकीचे. चुकीची. आपने खोल लिया ना? अरे यार क्या परफेक्ट मैडम, क्या करने. चुकीचे, गलत सोच रहे हैं ना. अपन बोलते हैं ना दोषयुक्त. देखो गलत, दोषयुक्त, इसकी सोच में ही गड़बड़ है. हेलो, राइट? प्रॉब्लम काय का है? सोच का प्रॉब्लम है पेशेंट, क्योंकि मैं बताया इसलिए कि एजुकेटेड है, सोच ही गलत रहा है, इसकी सोच गलत डायरेक्शन में जा रही है. हेलो, कुछ तो है डॉक्टर साहब जो समझ में नहीं आ रहा है, बराबर ना? क्या बोल रहा है पेशेंट? कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है, बराबर? हेलो, आर यू विथ मी गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt till now? हेलो, No, sir. पक्का? Are you with me now? So shall we proceed a little further and I'll explain you this remedy. थॉट्स का एक बहुत अच्छा रूब्रिक था. थॉट्स, रूब्रिक एरोनियस स्टेट ऑफ हिज हेल्थ, ऐसा था कुछ तो रूब्रिक था. काय कहते हैं मैं? ओके, एनी डाउट्स? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, या तो फिर मैं. ओके, इज इट विजिबल नाउ? पावर पॉइंट इज विजिबल? हाँ. हेलो. ओके, Yes, sir. let's understand Sabadilla now. See, so many years we've been using this remedy for allergic coryza, right? What I have understood from Sabadilla is, see, these people, अब देखो, the lady who has remarried, okay, a man and does not want husband to go back to her wife, right? It is indifference towards other, hard-hearted, cruelty, unfeeling. So these people many times will be mistaken with selfish.
ओके, प्लीज रिमेंबर, आप सेल्फिशनेस के अंदर अगर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको सैपेटिला नहीं मिलेगी। हम लोग कहाँ पर गलती करते हैं? देखो देखो, सेल्फिशनेस में है क्या सैपेटिला? नहीं है। ये थोड़ा सा हम लोग गलतियां जो करते हैं ना, समझने में थोड़ा समझिए ना। तो दिस कैन, द लेडी माइट appear like selfish to you, but this lady is earning on her own, right? खुद कमा भी रही है, हस्बैंड का भी सपोर्ट ले रही है। शी इज नॉट स्टॉपिंग द हस्बैंड फ्रॉम गोइंग देयर। प्लीज रिमेंबर, नहीं तो हम क्या करेंगे कि सेकंड शादी किया है, उसको उधर नहीं जाना चाहिए। हाउ सेल्फिश मैन, ठक 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 सेल्फिश डाल दिया, खत्म, आप निकल गए, सैपाटिला से निकल गए। ठीक है, अब खुद की पड़ी हुई है, इसको एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट, सिलिशा से कंफ्यूज करोगे पर जरूरी नहीं है, इसको खुद की पड़ी हुई है। फिर हम कंफर्म करते हैं हमेशा, एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट में मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ कि बाकी लोगों के बारे में क्या लगता है आपको। हाँ सर, बच्चों की भी फिक्र होती है, इनकी होती है, मेरा नेचर ही है सर, मैं बीमार पड़ गई तो सबके बारे में, कोई भी बीमार पड़ा तो सोचती हूँ। समझ गए? फिर कंफर्म कर ले जाओ, नहीं सर बाकी तो सब अच्छे हैं सर, अब मुझे मेरे पे ध्यान देना, अभी बाकी का क्या करना है सर। देन यू थिंक अबाउट एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। प्लीज रिमेंबर, again second presentation that I've seen, restlessness, very restless. That is why the person was going from one doctor to another. Restlessness, perspiration मतलब बीमारी, पसीने निकाल दिए, chill again going down, heat again नहीं समझ में आ रहा है, anxious, restless, anxious. This patient been traveling from one doctor to another is anxious, restless. Okay, shivering मतलब क्या, ठंड लग रही है इसको बीमारी के कारण, मतलब अपन बोलते ना कि इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हेलो, वो वाला प्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एंट्री और प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, लाइक हाउ यू कैन एंटर थ्रू, from where you can get entry of Sabadilla, because Sabadilla is many times confused with Valeriana, Mancinella, arsenic, Kaliars, even phosphorus, Naxwamika, because Naxwamika also is there, locality health about, phosphorus is there in discontented health about. So many times this is confused with these remedies. That is why कहाँ से मैं इसमें एंट्री करता हूँ, आंसरिंग इररिलेवेंटली। सी हियर वी डाउट द पेशेंट अबाउट हिस्टेरिया, बिकॉज तुम सवाल खूब करते हो, पेशेंट जवाब कुछ देता है, ठीक है, या उसका रिलेवेंस नहीं होता है कई बार। फिर हम बोलते हैं कि यार हमने ये पूछा आपको, देन दे विल आंसर यू 2-3 बार पूछने के बाद। आई यूज दिस रूब्रिक वेरी मेनी टाइम्स, आंसरिंग इररिलेवेंटली, मतलब देयर आंसर्स आर इररिलेवेंट, not to the case, not to the question that you ask them. Please remember. So here, yes, of course, you can take hysteria. Again, see, you can confuse with, or you get doubt with hypochondria, feigning hysteria. So instead of this, you can take this rubric, answering irrelevantly if the patient is not answering with relevant answers. Again, anxiety helps about, yes, anxiety causeless. Anxiety with respiration impeded, anxiety with pressure on the chest. ये बहुत आएंगे आपको। हम लोग क्या करते हैं, मेनी टाइम्स वी गो टू एंजाइटी, हार्ट अबाउट में वी गो, बट दिस इज प्रेशर। स्पेसिफिकली पेशेंट बोलेगा कि प्रेशर मुझे लगता है, सांस नहीं ले पाता हूँ, सांस अटकती है, इम्पीडेड इज सांस अटकना, इम्पीडेड। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। डॉक्टर साहब बहुत सांस अटक रही थी, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, सांस नहीं ले पाता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल से ले पाता हूँ सांस डॉक्टर साहब। इम्पीडेड रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ना आप जाकर के, अगेन इसका जाके मीनिंग समझो, समझ लो, नहीं समझ में आए मुझे पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट रिमेंबर, प्रेशर ऑन द चेस्ट, इम्पीडेड रेस्पिरेशन, बोझ है डॉक्टर साहब सीने पर, बोझ है डॉक्टर साहब सीने पर, अगेन प्रेशर ऑन द चेस्ट। ओके, अगेन अनदर एंट्री दैट आई हैव सीन, फेनिंग इन चिल्ड्रन एंड फेनिंग सिक। यहाँ पर अगेन यू माइट कंफ्यूज विथ अदर रेमेडीज लाइक plumbum mat or even ignatia for that matter, क्योंकि ignatia तो number 1 hysteric remedy of the maternity का, that is what we've been taught in the college days, right? Dr. Kent also gives ignatia very top priority whenever it comes to be hysteria, so he gives ignatia very top priority. Okay, understood? Feigning sick in children, feigning sick to be, again children बोला तो dependent भी रहने लगा, ठीक है।
एंट्री अगेन अनदर एंट्री इज व्हाट आई हैव सीन, डिल्यूजन सिक बिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री होती है। डॉक्टर साहब ठीक ही नहीं लगता, डॉक्टर साहब ठीक कर दो, कई दिनों से बीमार हो डॉक्टर साहब, मुझे अच्छा ऐसा दिन ही नहीं गया, अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो पूछने का अच्छा नहीं लगता मतलब क्या? नहीं डॉक्टर साहब सेहत ही सही नहीं लगती मेरी, बीमार ही लगता है डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। कुछ ज्यादा कंफ्यूज मत करो, क्योंकि ओवर द पीरियड इतने डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाता है, तो अमूमन ये हो जाता है ना कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं, आईपीआर होता है, वो तो सवाल पूछेगा ही ना कि क्या बोला डॉक्टर ने, नहीं मैंने पूछा नहीं, अगली बार पूछना। फिर घर का कोई शाना उसके साथ जाएगा और फिर डॉक्टर को पूछेगा, तो ऑब्वियसली फिर वो थोड़ा सा लाइट का तो उसके मन में आ जाएगा। तो लाइट डिजायर फॉर और एंजाइटी डार, ये दोनों रूब्रिक को कॉशन से यूज करो, लाइटली यूज मत करो। अनदर प्रेजेंटेशन दैट आई फाउंड, डिसकंटेंटेड। फॉलोअप में ये पेशेंट, नहीं डॉक्टर साहब ठीक ही नहीं लग रहा है अब तक के, ठीक ही नहीं लग रहा। आप बोलोगे यार क्या बड़ा रूब्रिक है डिसकंटेंटेड, ठीक ही नहीं लग रहा है, ठीक ही नहीं लग रहा है, पूरा ठीक नहीं लग रहा है अब तक के, नहीं लगा थोड़ा, नहीं लग रहा है पर ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब, नहीं लग रहा है पर नहीं भी लग रहा है। डिसकंटेंटेड, लाइफ में भी डिसकंटेंटेड रहेगा, हेल्थ में भी डिसकंटेंटेड रहेगा, याद रखो ये भी एक बहुत काम का एंट्री है। डिसकंटेंटेड, आप बहुत कम रेमेडीज पे आप सोचोगे, अगर हिस्टेरिकल जैसा लग रहा है, कुछ स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है, तो डिसकंटेंटेड लो आप जरूर, बड़ा रूब्रिक है, क्योंकि समाधान एक चीज है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आती है ना। तो ये भी एक कॉमन होनी चाहिए लोगों की सोच में कि समाधान आना चाहिए। आपको व्हाट्सएप में मौलाना लोग, तुम्हारे जितने भी अपने बाबा लोग हैं, संत महात्मा है, क्या बोलते पहले? समाधान लो, बराबर ना, जिनको नहीं होता तभी तो जाते ना उनके पास में। तो अगेन दिस इज अ वेरी पैथोलॉजिकल रूब्रिक दैट आई हैव सीन इन पीपल। अनदर एंट्री, डलनेस, डलनेस। डॉक्टर साहब जरा भी काम करता हूँ तो कर नहीं पाता, जरा भी पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ, सोने का मन करता, सोने का मन करता तो सीधा स्लीप में मत जाओ। डलनेस, कोराइजा ड्यूरिंग मतलब क्या? अगेन कोराइजा मतलब थोड़ी भी बीमारी हो गई तो बिस्तर पकड़ लेता, तो अगेन डोंट गो टू बेड, डिजायर टू रिमेन इन, कुछ होता ही नहीं डॉक्टर साहब, काम ही नहीं मन होता है, स्लो हो जाता हूँ मैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी स्लो हो गया हो डॉक्टर साहब, में मेरे से अभी फास्ट काम नहीं होता है, मेरे को उसका फिक्र होता है कि फास्ट काम नहीं कर पा रही हूँ मैं, जरा सी बीमार पड़ती हूँ तो फास्ट काम नहीं कर पाती हूँ। डलनेस, कोराइजा ड्यूरिंग, कोराइजा मतलब ट्रिवियल डिसीज, चक्कर जैसे लगते हैं डॉक्टर साहब, और कुछ नहीं कर पाते, काम फिर बहुत धीरे 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 करना पड़ता, काम धीरे धीरे करना पड़ता, धीरे धीरे। डलनेस, प्लीज रिमेम्बर, प्लीज रिमेम्बर, बहुत बहुत सर दिमाग का बहुत इतना लोड रहता है सर काम की जगह पे, स्लो होता सब काम में से सर, फिर बहुत ज्यादा स्लो होता बोलने पर थिंक अबाउट डलनेस। परस्पिरेशन मीन्स अगेन आफ्टर गेटिंग टायर्ड, परस्पिरेशन मतलब गेटिंग टायर्ड, पसीने छूटना, ठीक है। अनदर एंट्री पॉइंट दैट आई हैव सीन इज confusion of mind that I've explained you, vertigo during confusion of mind, he would delusion, he would faint। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि कभी भी चक्कर आएंगे मुझको, इसलिए मैं साथ में लेकर घूमता हूँ किसी को, ऐसे बोलते हैं बहुत लोग, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएंगे डॉक्टर साहब। डिल्यूजन, ही वुड फेंट, अगेन वर्टिगो वाला रूब्रिक देखो, तो वर्टिगो का एक प्रेजेंटेशन आई हैव सीन, वेरी वेरी कॉमन। अगेन बुलिमिया, बहुत खाने का मन करता, पता नहीं ऐसा कि सर 8-8 10-10 चपाती खा लेता हूँ मैं, तो खा रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है। अनदर बुलिमिया इज व्हाट, आयुर्वेद भी लेगा, होम्योपैथी भी लेगा, एलोपैथी भी लेगा, बाबा की भी दवाई लेगा, खुद भी घरगुती दवाई करेगा, वो भी बुलिमिया में जाता है, ये खाओ के ये खाओ, कितना खाओ कितना खाओ। हेलो, ग्रीड से भी आगे, बुलिमिया इज eat and eat and eat. So you will find many obesity patient, diabetic patient, even PCOS patient, this remedy can be useful. Not necessarily that this remedy will be there only in hysterical cases. No, please remember this. If with obesity, bulimia, if these people have thoughts erroneous and delusions and all, please think about this remedy. Awkward, these people will be, again you will find very awkward. I have seen these people. तो bulimia plus awkward, don't go to calcira carb, प्लीज रिमेम्बर। या तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर ने बोला कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन करो, तो कैलकेरिया का कंफ्यूजन है, बुलिमिया है, ऑकवर्डनेस है, एंजाइटी है, तो कैलकेरिया आर्स मत दे देना,
पार्शियल सिमिलिमम होगा, पेशेंट ठीक नहीं होगा. प्लीज रिमेंबर. सो ऑकवर्ड यू माइट कंफ्यूज विथ lack of confidence. Now in lack of confidence, Sabadilla is not there. Please remember. Another presentation, this I have seen very marked in very many cases. Delusion pregnancy is with distension of abdomen from flatus. डॉक्टर साहब मुझे ज्यादा वक्त चाहिए आपका, बहुत प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर्स के पास गया हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, ये बीमारी जा ही नहीं रही, बहुत दिनों से बीमार ही हूँ. और जब आप निकालते तो कुछ रहता नहीं है, और इतना सीरियसली बोलेगा भेंडी अपने को लेगा, यार ये क्या ऐसी बड़ी बीमारी लिख रहा है डॉक्टर साहब, कोई कैंसर तो नहीं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं, और निकलेगा कुछ नहीं. तो डिल्यूजन प्रेगनेंसी इज विद डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम फ्लैटस का मतलब है खोदा पहाड़ निकला चूहा. मतलब ऐसे सीरियसली बताएंगे, आपको पता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, लेकिन रहेगा क्या पेट में? फ्लैटस. ठीक है. Practice. Yes. Now another presentation, poison he has been, जैसे मैं अभी पहले भी केस में बताया कि डॉक्टर साहब ये दवाई वो दवाई साथ में चलेगी ना डॉक्टर साहब, सर ऐसा हो गया ना मैंने वो 2 दवाइयां साथ में ले लिया, उसके वजह से तो नहीं हो रहा है मुझको ये. तो आप हाई साइंस की तरफ मत चले जाओ कि fear medicine being poison or diligent poison he has been with my medicine. Don't go there. You will confuse because hardly 4-5 remedies are there. The delusion he has been poisoned का बहुत आपको मिलेगा. Another entry that I have seen, देखो delusion thoughts इन्होंने क्या है, delusion body state of his body, to the erroneous state of his body. अब बॉडी का मतलब खुद भी रहेगा, फैमिली भी रहेगा, उसका बॉडी, जैसे अभी हमारा पीएचएफ का बॉडी है, जैसे अभी गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, ये भी समझिए, इसकी भी केसेस आपको कभी मिलेगी. थॉट्स एरोनियस डिल्यूजन डिमिनिश्ड, shrunken parts are diminished. Some people might come with their penis size is small, penis size is reduced. I have given Sabadilla to many patients who come to me, Doctor Saab, you have some medicine for increasing the size of the penis. I said, why? Doctor Saab, it has become very thin, और छोटा हो गया. तो बोलता क्या है तुमको? डॉक्टर साहब बहुत फिक्र लगती है, समझ में नहीं आता है. चल भैया Sabadilla 1 ml खुश हो जा. Get it? Diminished, shrunken parts are delusions. Imagination again, पतला हो रहा हो, withering body मतलब वही झुलस रही है. हेलो, ये भी प्रेजेंटेशन बहुत काम का है. These things I have seen single rubrics out of these multiple cases. Another presentation again, anxiety conscious, criminal, she has committed a crime. डॉक्टर साहब बाहर गया था, एक पेशेंट ने बोला ना कि डॉक्टर साहब मैं शराब पीता था, मुस्लिम हूँ. अगेन दैट क्राइम बोला, एंजाइटी कॉन्शियस का अगेन वही सत्सत विवेक का. तो दिस पीपल कैन कम टू यू विद गिल्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. तो गिल्ट प्लस हाइपोकॉन्ड्रियासिस लाइक प्रेजेंटेशन प्लस गिल्ट प्लस इमेसिएशन. हेलो, गिल्ट प्लस साइज डिक्रीज्ड. अभी वन पेशेंट दैट आई हैड गिवन Sabadilla, डॉक्टर साहब मैं तो क्यों ऐसा लगता है आपको? ही केम विद अगेन दिस कंप्लेंट ऑफ पेनिस बीइंग स्मॉलर एंड तो डॉक्टर साहब गलतियां तो हुई है, जवानी में बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन किया करता था डॉक्टर साहब, मुझे लगता है उसी से होगा. अगेन मैं क्यों ऐसा लगता है सर, वो तो पापी है ना. तो भैया मैं क्या, ठीक है सर, अंडरस्टूड. दैट इज अगेन Sabadilla. सो गिल्ट प्लस दिस एंजाइटी कॉन्शियस एंड दिस. प्लीज रिमेंबर, पाप पुण्य याद रखो. उर्दू में गुनाह कहा गया है पाप को, उर्दू में पाप शब्द नहीं गुनाह, तो क्राइम, sin and crime together. Please remember. Next entry that I've seen, delusion stomach ulcer has corrosion. तो अगर सास है भाई, नई बहू आई जब से घर का हमारा खत्म हो गया डॉक्टर साहब, इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मेरे बेटे को अलग कर दिया, सब कर दिया. दिस इज ऑल्सो अल्सर, करोजन. स्टमक मतलब वही कि घर हमारा एकदम खाता पीता घर था डॉक्टर साहब, इसने पूरा तोड़ दी, अलग कर दी, अब सब ये हो गए हैं खाता पीता घर. प्लीज रिमेंबर, स्टमक को याद रखना. स्टमक इज व्हाट इज देयर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाइजेशन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ
eating, right? Remember this. So body, again, combine body, erroneous state of body, stomach, and poison, plus jealousy. Remember, तो सास बहू का प्रॉब्लम, अगेन कोई एनिमी का ले लो आप, यहाँ पर सुपरस्टिशन में आप अटक सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो सुपरस्टिशन से अगर आप फेल होते हैं किसी केस में, तो गो टू दिस, think about this. Okay, that somebody is causing harm. Remember, you can see the slide, right? Thank you very much. This is it actually. Any questions if you have? I don't, I'm not like really very much fond of slides and all. Can you see me, guys? Yes, sir. Yeah. So the slide is done. Any questions till now? Sabadilla is this much that I have understood in nutshell. In fact, I had shared the case of Sabadilla long back, in which I had explained the सास बहू का case also. Jealousy के अंदर Sabadilla है, mind you. Jealousy woman between में नहीं है, but jealousy में Sabadilla है. Delusion poison में Sabadilla है. Crime में Sabadilla है. तो इसके issues conscience भी रहता है, इसका issue feeling भी रहता है, इसका issue jealousy भी रहेगा, इसका issue anxiety health भी रहेगा. ठीक है? And unfeeling, hard-hearted भी रहेगा. खुद पे बहुत खर्चा करेगा. तो many cases when you fail with Cilicia for anxiety about himself, about, okay, and if not being helped with Cilicia, do think about Sabadilla. Okay, where the patient feels कि डॉक्टर साहब खाना खा रहा हूँ, आंख को ही नहीं लग रहा है. बहुत पेशेंट आपको बोलते खाता हूँ नहीं लग रहा है. थायराइड टेस्ट करके देख लेते नॉर्मल निकलता है. तो अगेन दे फील कि कुछ गड़बड़ है, मतलब वही अल्सर है. जो अल्सर क्या करता है, आपको डाइजेस्ट नहीं होने देता है ना. अल्सर डाइजेस्ट नहीं होने देता है. ठीक है, रिमेंबर. तो many times when patient says कि खाता हूँ फिर भी आंखों नहीं लगता है डॉक्टर साहब, think about Sabadilla. Okay, specifically think about Sabadilla. Any questions? Okay, we can wind up, Mansi. Yes, go on. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session. And it was a practical session, I can say. And you gave deep insight about the remedy, Sabadilla. So it can be used very commonly now because we get confused in remedies when light desire and anxiety dark comes. So it was really wonderful. And thank you. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you, my team. Thank you. Please wait for the 100th lecture. That's not going to be next Thursday. We will announce the date, but we're going to make it a big event, inshallah. Big as in like we're going to rope in good lecturers. Okay, big like good lecturers will be there. So please wait for the 100th lecture. It's going to be like थोड़ा बड़ा हम करेंगे कुछ इंशाल्लाह. Okay. Thank you very much. Thank you, Mansi. Thank you, Priyanka. Thank you, Pranita, Nishu, and all my PHF team. Thank you. Thank you, the listeners. And thank you for showering your love on our YouTube channel also. Please keep sharing the videos, spread the knowledge to more and more people possible. Thank you. God bless. Allah Hafiz.